अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक सीरीज़ शुरू करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स में हम शेयर करेंगे, ये BLLB थर्ड सेमेस्टर के लिए भी है और BA कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जम्मू यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाया जाता है, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम लिंक और फेसबुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, आप उनको ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस के जितने भी लेक्चर्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लेक्चर्स हैं, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिकली recently a newly updated subject, a recent discipline. It is only 100-year old that this public administration is being taught in the universities, in the colleges and in the schools. But before 100 years, it was only a part of political science, and it was taught in many universities, in many colleges as a subject of as a branch of political science. But now it has become a separate or an independent discipline or a subject. But as a human activity, public administration is as old as the human history. So far as the word public and administration are concerned, these are the two words. Public means common man, aam aadmi, and administration, as far as administration is concerned, it is basically a Latin word, ad and ministry, which means to serve, to care or to look after. So when we combine these two words, public and administration, so public administration means to serve the general people, to serve the common man, to serve. Administration is found in business firm, departmental store, government hospitals, schools, colleges and universities. Yani everywhere we have the administration, whether it is government administration, which is called public administration, whether it is the private administration. There are two parts of administration. One is called public administration and another is called the private administration. The father of public administration is Woodrow Wilson. So as far as definitions of public administration are concerned, there are many definitions given by many public administrative thinkers in different periods of time. The most important definition is given by Herbert A. Simon. That is, administration cannot be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals. साइमन कहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं एज एन एक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स, यानी ये ग्रुप्स की एक्टिविटी होती है जो कोऑपरेट करते हैं किसी पर्टिकुलर, किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। यानी किसी पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है कोऑपरेशन के तहत और ग्रुप में, उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। Second definition is given by L.D. White. The art of administration is the direction, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objective. Administration का मतलब होता है direction, coordination और control of many persons. बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना किसी particular objective या purpose को achieve करने के लिए. So there are two essential elements of administration. One element is a collective effort and second is common purpose. यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसके दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है कलेक्टिव एफर्ट, यानी जिसमें सब लोग मिलकर काम करते हैं, और दूसरा होता है कॉमन पर्पस, एक मकसद के लिए काम करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं नैरो एंड ब्रॉडर व्यू। नैरो व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसको साइमन, गिलिक, फियोल ने जो है सपोर्ट किया है। और अकॉर्डिंग टू this narrow view of public administration includes the activities of executive branch of government. यानी इसमें कहा जाता है जो executive branch of government है, उनकी जो activity है, that is called the public administration. लेकिन जो broader view है, that is public administration includes the activities of all three branches of the government like legislature, executive and judiciary. तो यहाँ पे समझना होगा कि जो नैरो व्यू है, इसमें कहा गया था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद है वो है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है उनकी एक्टिविटीज़ को देखना, और जो ब्रॉडर व्यू है
उसमें कहा गया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इंक्लूड करता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, यानी तीनों ब्रांचेस को। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है। तो इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट व्यूज है। एक व्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस, और सेकंड व्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ए साइंस, और थर्ड वन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट। तो पहले हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है कि एक आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैकियावेलीज प्रिंस की हम बात करें, कौटिल्य की अर्थशास्त्र को ले, या अबुल फजल जो है उसकी किताब जो है आईन अकबरी को ले। सो दीज बुक्स आर द मैनुअल्स ऑन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनमें जो है आर्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक आर्ट कहा गया था। क्योंकि अगर हम मैकियावेली की प्रिंस को देखें, जहां पर वो एक प्रिंस को गाइड करता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालेगा, कैसे काम करेगा, तो वहां पर सिर्फ आर्ट आता है, ये साइंस नहीं है। इसी तरह कौटिल्य की अर्थशास्त्र को हम ले, जो बहुत ही पुरानी किताब हिंदुस्तान में लिखी गई है, या अबुल फजल की जो आईन अकबरी है, ये सारी किताबें बताती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है। और उसके बाद आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ साइंस। मेनी राइटर्स लाइक मोरिस कोहेन, ओरविक, उनका यह कहना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ए साइंस बिकॉज देयर इज नो एग्जैक्टनेस, देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनिशन, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, देयर आर नो प्रेडिक्शंस, it is based on moral values, so it can't be a science. Same is another view given by Woodrow Wilson, who is the main supporter that public administration is a science. क्योंकि जो वुड्रो विल्सन, जिसको हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, तो जब हम वुड्रो विल्सन को स्टडी करते हैं, क्योंकि उसी ने बेसिकली ये सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट दिया था, जिसमें उसने कहा था कि जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इट शुड बी सेपरेटेड, एक सेपरेट, इंडिपेंडेंट और एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है। और विल्सन ने इसको सेपरेट किया था पॉलिटिक्स को फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ही आर्ग्यूड दैट पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद पॉलिसी मेकिंग, whereas administration is concerned with the implementation of policy decisions. So Wilson described public administration as a field of business. That is why एक ओपिनियन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आता है, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। इसके अलावा भी जो है इंटेग्रल व्यू यहाँ पे आती है जब हम नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, एडमिनिस्ट्रेशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज लाइक क्लर्कल, मैनुअल, मैनेजरल एंड टेक्निकल, यानी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन उन सब कामों को, उन सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जिसमें मैनुअल वर्क भी आता है, क्लर्कल भी आता है, मैनेजरल भी आता है और टेक्निकल भी आता है। फॉर एग्जांपल द एक्टिविटीज ऑफ ए गेट कीपर, स्वीपर और ए सेक्रेटरी ऑफ ए गवर्नमेंट आर इन द पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो एल डी वाइट जो है, एल डी वाइट हैव सपोर्टेड दिस व्यू, जब वो कहता है टॉप टू बॉटम जितने भी विंग्स आती है, जितने भी ब्रांचेस आते हैं, जितने भी लोग आते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है। लेकिन जो दूसरा हमारा ओपिनियन आता है, अनदर व्यू, दैट इज कॉल्ड अ मैनेजरल व्यू, जिसमें कहा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज रिलेटिंग विद कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड यूनाइट यानी ओनली टॉप पर्सन्स, यानी जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्रेट्स जिनको हम कहते हैं, या आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हम कहते हैं, तो उनका जो काम होता है दैट इज टू कंट्रोल और टू कोऑर्डिनेट और टू यूनाइट, तो इस चीज को हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए अगर हम नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें हमें डिफाइन ये पहले करना होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट। दूसरा इसमें आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ए साइंस। तीसरा आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। फोर्थ वन इज इंटेग्रल व्यू एंड फिफ्थ वन इज मैनेजरल व्यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके बाद आता है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई नो कि ये टॉपिक बड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप इसको एंड तक देखें, क्योंकि ये पहला टॉपिक है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, तो ये इसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा आपको पेशेंस लेने हैं, तो अब इसके बाद हम स्कोप की तरफ बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो फार एज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड, द इंपॉर्टेंट व्यू इज पोस्ट कॉर्ब व्यू, POSDCORB, post corp view that was given by Professor Luther Gillick. So each word of this abbreviation stands for a particular word. Like P stands for planning, O stands for organization,
S stands for staffing, D stands for directing, CO coordination, और stands for reporting and B stands for budgeting। तो हर एक लेटर का एक मतलब है और ये पोस्ट कॉर व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है सो फॉर एज द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, जो प्रोफेसर ल्यूथर गिलिक ने दिया था। प्लानिंग में क्या होता है, वो कहता है कि प्लानिंग जो है दैट मीन्स थिंग्स दैट नीड टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पहला वर्ड आता है स्कोप में वो आता है प्लानिंग, कि हमें प्लानिंग करनी है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। दूसरा वर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है, जो काम करने वाली बॉडी है, उसका नाम आता है। उसके बाद आता है स्टाफिंग, यानी पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग स्टाफ काम करता है वो कौन होते हैं, उनका रोल। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, यानी ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, कि यहाँ पे डायरेक्शन होती है, ऑर्डर्स दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उनको फॉलो किया जाता है। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन, यानी इंटर रिलेटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्क, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होती हैं, उनको इंटर रिलेट करना। देन आर फॉर रिपोर्टिंग, लाइक इन्फॉर्म द एग्जीक्यूटिव, यानी इन्फॉर्मेशन देना, रिपोर्ट करना कि कहाँ तक हमारा काम पहुंचा, हम क्या कर रहे हैं। देन बी फॉर बजटिंग, कि जो फाइनेंस का स्टेटमेंट है, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो मसला है। तो ये सारी चीज़ें आती है पोस्ट कॉर व्यू में, जो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डिफाइन करना है। देन we have a subject matter view. Services meant for the people includes law and order, defense and public health। तो subject matter view में कहा जाता है कि वो services which are meant for the people, जिसमें law and order आता है, defense आता है और public health आता है। यानी public administration का जो काम है that is to maintain law and order, to provide the defense or to maintain public health। Then we have administrative theory। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या बोलती है, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। इट आल्सो इंक्लूड्स एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड कैबिनेट और एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में कहा जाता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट का, जुडिशरी का कैसे कंट्रोल होता है। यानी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी अथॉरिटीज़ है, उनके ऊपर पार्लियामेंट, कैबिनेट या जुडिशरी कैसे कंट्रोल करता है और कितना कंट्रोल कर सकता है, ये चीज़ें इसमें आती है स्कोप में। देन वी हैव आइडियलिस्टिक व्यू और वेलफेयर व्यू। आइडियलिस्टिक व्यू और वेलफेयर व्यू में क्या कहा जाता है, दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्स एट द पब्लिक वेलफेयर, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है पब्लिक वेलफेयर, यानी वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट यहां पे आता है। तो दिस इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आई थिंक ये जो टॉपिक हमारा आज का रहा, आई थिंक ये 12-13 मिनट का टॉपिक रहा। इसमें हमने मीनिंग, नेचर और स्कोप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें लिखें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगा। और आगे भी हमारी सीरीज जारी रहेगी। हम सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद जो है इसकी थ्योरीज जो है, उन सारे टॉपिक्स को एक एक करके इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। बस आप हमारे चैनल पर रहिए, इसको सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।